जय भीम दोस्तों। कल मैंने बात करी थी अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ा था। आज मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 19, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए दोस्तों कि राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या क्या आता है। आर्टिकल 19, protection of certain rights regarding freedom of speech etc. First, all citizens shall have the rights a. To freedom of speech and expression, b. To assemble peaceably and without arms, c. To form associations or unions, d. To move freely throughout the territory of India, e. To reside and settle in any part of the territory of India, g. To practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Second, nothing in subclause A of clause first shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law, insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. Number third, nothing in subclause B of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said subclause. Number 4, nothing in subclause C of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause. Number 5, nothing in subclauses D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said subclauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any scheduled tribe. Number 6, nothing in subclause G of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interests of the general public reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause, and in particular nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law insofar as it relates to or prevent the state from making any law relating to. First, the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business, or second, the carrying on by the state or by a corporation
Second, the carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state, or of any trade, business, industry, or service, whether to the exclusion, complete or partial of citizens or otherwise. First, inserted by the Constitution. First, inserted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S 2 WEF 26 1979. Second, subclause F omitted by S2 IBID WEF 26 1979. Third, subclause by the Constitution First Amendment Act 1951 S C S3 fourth clause second with retrospective effect. Fourth, inserted by the Constitution 16th Amendment Act 1963 S2. Fifth, subclause by the Constitution 44th Amendment Act 1974 S2 for subclauses D, E, and F WEF 26 20 and 6 1979. 6 subclauses by the Constitution First Amendment Act 1951 S3 for certain words. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। नंबर 1, सभी नागरिकों को का वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का और खा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। ग संगम या संघ बनाने का अधिकार। घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार। वहाँ भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। 6 कोई प्रवृत्ति उपाजीविका व्यापार उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। 2 खंड 1 के उपखंड का की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उत्पीड़न के संबंध में युक्त निर्वर्धन, जहाँ तक कोई विद्वान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्वर्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। खंड नंबर 4 उपखंड के नंबर 4 उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्वर्धन, जहाँ तक कोई विद्वान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्वर्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। नंबर 5 उक्त खंड के उपखंड गा और उपखंड वा की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्वर्धन, जहाँ तक कोई विद्वान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्वर्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। नंबर 6 उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्त निर्वर्धन, जहाँ तक कोई विद्वान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके
परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्वर्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टता उक्त उपखंड की कोई बात। 1. कोई वृत्ति उपजीविका। नंबर 1, कोई वृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से। 2, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से। जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। नंबर 1, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा 26/6/1979 से अंतः स्थापित। नंबर 2, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा 20/6/1979 से उपखंड चा का लोप किया गया है। नंबर 3, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 3 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 4, संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित। नंबर 5, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा 20/6/1979 से उपखंड घा, उपखंड वा और उपखंड चा के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 6, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित है। ओके, तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैंने आज इसको पढ़ा है। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, जब तक के लिए गुड नाइट।